Good morning, students. Welcome in online classes. Once again, my dear students, study in live classes we have discussed about that what was the constitutional reforms and what was the socio-religious reforms of the early nationalists. And then after how the early nationalists asked to demand from the British government. Today our topic is how the early nationalists use their weapons as a method for the freedom struggle movement of India. So today we have discussed about the methods, which type of method used by the early nationalists for the freedom struggle of India. Students, as you know, the early nationalists believe into the constitutional method. I hope that each and everyone familiar. The early nationalists, who were early nationalists, study we have discussed from 1885 to 1905. The Congress was led by the early nationalist leader, and the early nationalist leader also known as the moderate leader because they all are believe in the British sense of justice. They want to self-government under the British rule. Okay, so the early nationalists play a very important role for the freedom struggle movement, but they use the constitutional method. In their constitutional method, the early nationalists, if you want to write, so please also write, the early nationalists use the constitutional method, means they never believe into the revolutionary method. They never believe into the revolutionary method. मतलब जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, जिन्हें हम मॉडरेट लीडर बोलते हैं, वो संवैधानिक तरीके से अपनी डिमांड को फुलफिल कराना चाहते थे. संवैधानिक तरीके में वो क्या यूज करते थे? They use by their newspaper, so many newspaper published by the early nationalists, like that Rasgoptar published by Dadabhai Naoroji, Surendranath Banerjee, and Gopal Krishna Gokhale also. Daily and weekly articles and newspaper published against the British government and criticize the policies of the British government. मतलब जो अर्ली नेशनलिस्ट वो न्यूज़पेपर का सहारा लेते थे, अपनी बातों को न्यूज़पेपर के थ्रू लिखकर अंग्रेजों के अगेंस्ट रखते थे. मतलब अंग्रेजों की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज एक तरह से कह सकते हैं कि करते थे. The early nationalists believe into the constitutional method. They use the newspaper. They also send the deputation प्रतिनिधि मंडल, कई लोग मिलकर 2-3-4 के ग्रुप में मिलकर अपनी डिमांड को लिखकर अंग्रेजों के पास जाते थे. थ्रू द डिपुटेशन, थ्रू द रिजोल्यूशन प्रस्ताव पास करते थे अर्ली नेशनलिस्ट सब मिलकर कि हमें क्या करना है, हमें कौन सी डिमांड मांगनी है. इसके लिए वो एक रिजोल्यूशन पास करते थे और उस रिजोल्यूशन को अंग्रेजों के सामने रखते थे. दे आल्सो यूज द 3 P's. बहुत बच्चे लिखते हैं. दे यूज द प्रेयर, पिटिशंस एंड रिक्वेस्ट. Through the petition, through the request, they want to fulfill their demand by the British government. But the Britishers never pay their attention towards the demands of the early nationalists. So student, अगर आपसे पूछा जाए what was the method used by the early nationalists, तो आपका आंसर बिल्कुल सिंपल सा ये होगा. The early nationalists uses the constitutional method. In their constitutional method, they use the prayer, petitions, by the newspaper, by the pamphlets, by the resolution, by sending the deputation. They want to fulfill their demand. अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपकी बुक में बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड. और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में लिखा हुआ दे सेंड पिटिशंस टू हाई ऑफिसर्स, हेड मीटिंग का भी सहारा लेते थे. इन टाउन्स एंड सिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड लेफ्टिनेंट्स एंड हैंडबिल, हाथों से लिखी हुई चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड करते थे. इन शॉर्ट प्रेयर पिटिशंस एंड प्लेज वर द मेथड यूज्ड बाय टर्म्स फॉर द पब्लिक ओपिनियन. I hope that clear. The early nationalists used the constitutional method. Through the prayer, through the petition, through the plays, they want to fulfill their demand by the British government, and thereafter by the newspaper. Newspaper is also very important, play role during the time of the freedom struggle movement of the modern era. After that, by deputation, they sending deputation for the fulfillment of the demand from the British government. Student, these all are the important method used by the early nationalists. अब इसके बाद आता है टॉपिक आपका कंट्रीब्यूशन. हमें तो आपको बता ही चुके हैं द अर्ली नेशनलिस्ट फेलियर एंड अचीवमेंट्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट. नो डाउट
The those methods are used by the early nationalists by passing resolution, by sending deputation. These all things are parted to the British government. इन मेथड के थ्रू अंग्रेजों से, ब्रिटिशर्स से अर्ली नेशनलिस्ट अपनी डिमांड को पूरा नहीं करवा पाए, लेकिन हाँ एक कांग्रेस को एक नई दिशा, एक नई गाइडलाइन और फ्यूचर में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट उन लोगों ने देखा। आप देखेंगे 1905 के बाद जब रेडिकल एरा स्टार्ट होता है, इसी चैप्टर के बाद हम आपको पढ़ाएंगे। दिस इज द लास्ट portion of this chapter. This is the last video of this chapter. Okay, what was the achievements after the? मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ कि क्या क्या अचीवमेंट था अर्ली नेशनलिस्ट का। भले अर्ली नेशनलिस्ट सेल्फ गवर्नमेंट का दर्जा नहीं मिला, अंग्रेजों ने अर्ली नेशनलिस्ट की डिमांड को फुलफिल नहीं किया, लेकिन इस अर्ली नेशनलिस्ट के ही वजह से नाउ द फाउंडेशन ऑफ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक नेशनल मूवमेंट, फाउंडेशन ऑफ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक नेशनल मूवमेंट फाइनली प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर फ्रीडम स्ट्रगल। इस मूवमेंट के ही वजह से, अर्ली नेशनलिस्ट के ही वजह से आपके देश में सेक्युलर और डेमोक्रेटिक नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। देन आफ्टर पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ द इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस जो राजनीति के बारे में, देश के बारे में और देश की आज़ादी के बारे में नहीं जानते थे, इसी अर्ली नेशनलिस्ट का ही देन था। द अर्ली नेशनलिस्ट गिव देम न्यू डायरेक्शन फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, मीन्स वी कैन से the early nationalists give a platform for the political education to the Indians. इसके बाद exposure the true nature of the Britishers, इसी अर्ली नेशनलिस्ट का ही देन है कि सभी को पता चल गया, क्या पता चल गया, व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश, कि वास्तव में जो अंग्रेज हैं उनके दिल और दिमाग में क्या चलता है। मीन्स वी कैन से दिस इज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट बाय द अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट। द अर्ली नेशनलिस्ट give a new way and direction for the how to fight against the British government in the future, because through the early nationalists it is clear what is the nature and what is the thinking of the Britishers towards the Indians. Student, social reforms movement also give a new direction and new guideline to the Indians. After the social reforms movement, आपने previous chapter में पढ़ा भी था, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, इन लोगों ने जो सोशल कंट्रीब्यूशन किया, सोशल रिफॉर्म्स किया, उसके बाद से देश में यूनिटी आई। कह सकते हैं आफ्टर द सोशल रिफॉर्म्स, या यू कैन से दैट आफ्टर द मॉडर्न एरा द यूनिटी एंड स्पेशली द सोशल इविल्स रिमूव फ्रॉम देयर सोसाइटी, फ्रॉम आवर सोसाइटी। ओके, नाउ इंडियन काउंसिल एक्ट आल्सो अबॉलिश्ड, दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट। इंडियन काउंसिल एक्ट जो था, जो अंग्रेजों के द्वारा पास किया गया था, अर्ली नेशनलिस्ट ने इसको एबॉलिश किया और इसको खत्म करवाया, ये भी एक ग्रेट अचीवमेंट है। तो ये कुल मिलाकर कह सकते हैं फेलोर एंड अचीवमेंट्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नौरोजी। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक में एक पेज होगा, जहाँ पर होगा पेज नंबर 116, और उसमें लिखा होगा सबसे पहले दादा भाई नौरोजी की पिक्चर होगी। बहुत बार एग्जाम में आइडेंटिफाई करने को आता है, आइडेंटिफाई द पिक्चर, राइट एनी 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, या ये भी क्वेश्चन हो सकता है राइट द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर ऑफ दादा भाई नौरोजी, या व्हाट वाज अदर नेम ऑफ द दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी का अगर कंट्रीब्यूशन कहें तो दादा भाई नौरोजी की कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दादा भाई नौरोजी आल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी आल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन किया था, क्या क्या बनाया था। दादा भाई नौरोजी फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो लंदन में स्टैब्लिश किया गया था, इसको फाउंडेशन किया था दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद लिटरेरी वर्क उनका क्या रहा है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दिस इज द लिटरेरी वर्क ऑफ दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके अलावा इन्होंने कौन सी मैगजीन स्टार्ट किया था, धर्म मार्ग दर्शक। दादा भाई नौरोजी स्टार्टेड अ वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन, दिस इज नोन एज द धर्म मार्ग दर्शक, धर्म मार्ग दर्शक। ओके, सो प्लीज वन टाइम सी द पिक्चर एंड आल्सो सी द इंपॉर्टेंट contribution of Dada Bhai Nauroji, and then after also given some important point like that Dada Bhai Nauroji first India's unofficial ambassador in England in 1855। in 1855 में दादा भाई नौरोजी क्या थे, अनऑफिशियल एम्बेसडर के रूप में भारत के पहले एक तरह से कह सकते भारत एक तरह से नहीं, बिल्कुल
Finally, Indian unofficial ambassador appointed in the British Parliament in 1835. इसके अलावा दादाभाई नौरोजी founded London Indian Society. दादाभाई नौरोजी also founded East India Association in London. दादाभाई नौरोजी elected to Parliament on the 5th July 1892. Entered the House of Commons as Liberal, representing the central principle of the constituency. So these are all the इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ दादाभाई नौरोजी. आप अपनी बुक में देखेंगे तो इसमें सब कुछ मिलेगा कि कांग्रेस में उनका क्या रोल था. आप दो पॉइंट तैयार करेंगे. एक बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रगोप्ता. दादाभाई नौरोजी फाउंडेड बॉम्बे एसोसिएशन एंड एडिटेड द न्यूज़पेपर राष्ट्रगोप्ता. राष्ट्रगोप्ता इज अ न्यूज़पेपर जो दैट पब्लिश्ड बाय दादाभाई नौरोजी. राष्ट्रगोप्ता. एंड देन आफ्टर हिज रोल इन कांग्रेस, दादाभाई नौरोजी गिव द स्लोगन स्वदेशी बाइकॉट, स्वराज एंड नेशनल एजुकेशन. कांग्रेस के रेजोल्यूशन में जब वो प्रेसिडेंटशिप थे 1906 में, तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट और अपने प्रेसिडेंटशिप उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वदेशी को यूज किया जाए, स्वराज जितनी भी देश के अंदर चीजें बनाई जाए उसको यूज किया जाए, स्वराज बाइकॉट द ब्रिटिश गुड्स एंड नेशनल एजुकेशन. नेशनल एजुकेशन को दादाभाई नौरोजी ने कहा था देने के लिए. दीज आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ दादाभाई नौरोजी. इसके अलावा इकोनॉमिक थ्योरी की अगर हम बात करें तो दादाभाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी के थ्रू द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी, उसमें उन्होंने ड्रेन थ्योरी को बताया हाउ द ब्रिटिशर्स ट्रांसफर द रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड थ्रू हिज बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया. दिस इज नोन आल्सो दैट ड्रेन थ्योरी ऑफ दादाभाई नौरोजी. So my dear student, it is also very important contribution. After that, Gopal Krishna Gokhale, same as it is. Firstly, you have to identify the picture. गोपाल कृष्ण गोखले कैसे दिखते थे. इसके बाद इनको और किस नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है इनका, गोपाल कृष्ण गोखले, आल्सो नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी. यस, कई बार क्वेश्चन पूछा है, हु वाज नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु कौन है? कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी. इसके बाद इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया था. इसके बाद इन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के रूप में अपॉइंट हुए थे. और लिटरेरी वर्क में अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दो काम किया है. पहला तो ये पूना सार्वजनिक सभा, क्वार्टरली जनरल जो पब्लिश होती थी, पूना सार्वजनिक सभा को इन्होंने एस्टैब्लिश किया. स्टूडेंट, इन रोल इन कांग्रेस एक बार आप देख लीजिएगा. इसके अलावा सर्वेंट इंडिया सोसाइटी के बारे में कोई दो पॉइंट इंपॉर्टेंट आप देख लीजिएगा. रोल एज मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इकोनॉमिक आइडियाज दादाभाई गोपाल कृष्ण गोखले के इकोनॉमिक आइडियाज क्या थे? बेटर जॉब, बेटर कंडीशन ऑफ इंडियन. और क्या काम किया था उन्होंने? भारत में फिजिकल पॉलिसी को इंप्रूव करने की बात अंग्रेजों से उन्होंने किया था. और उन्होंने गवर्नमेंट से लैंड रेवेन्यू टैक्स को डिक्रीज करने की डिमांड किया था. ये भी इनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन है. एंड दादाभाई नौरोजी के बाद गोपाल कृष्ण गोखले का जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक आइडिया, इसके भी कोई दो पॉइंट आप देखेंगे. इसके बाद था सुरेंद्रनाथ बनर्जी. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को माना गया है क्या? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. एंड देन आफ्टर सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन political leader during the British Raj. He founded the Indian National Association. Indian National Association founded by दादाभाई नौरोजी. इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया. कई बार क्वेश्चन आया आपकी इसका साइड में भी क्वेश्चन होगा, हु वाज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इन इंडिया? हु वाज नोन एज सुरेंद्रनाथ बनर्जी. इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या था? इंडियन एसोसिएशन. और क्या जाने जाते हैं ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इनके लेख थे. पहला, एडिटर ऑफ बंगाली, Surendra Banerjee, write a literary work, editor of Bengali, and then after wrote The Nation in the Making. Student, please one time again see the points related to Gopal Krishna Gokhale, Dadabhai Navroji, and Subhash Surendra Banerjee. Today we have discussed method of the early nationalist, contribution of Dadabhai Navroji, contribution of Gopal Krishna Gokhale, contribution of Surendra Banerjee. The student, please be carefully study about the picture and important fact related to the different three leaders. इन तीनों लीडर्स की आप पिक्चर देखेंगे, उनके लिटरेरी वर्क को देखेंगे और उनके कंट्रीब्यूशन क्या है, उसमें से दो पॉइंट, हर एक कंट्रीब्यूशन का दो पॉइंट आप तैयार करेंगे. थैंक यू.